So we'll start with acid basis salt. Initial parts of the chapter deals with acids. Middle part of the chapter deals with bases, and then the final part of the chapter deals with the concept of salts. So right now हम लोग concentrate करेंगे on the concept of acids. So before we go into the text, let us try and understand what an acid is. So there were different explanations of an acid at different points of time. Chronologically, historically, अगर आप देखो, so with the advent of science, with the knowledge of different compounds, acid का understanding भी change होने लगा. The first understanding of an acid was compound containing hydrogen. So initially they believed any compound which contains hydrogen is an acid. Any compound which contains acid is an acid. So that was the initial understanding. So HCl was considered to be an acid. H2SO4 was considered to be an acid. HNO3 was considered to be an acid. And similarly, all other acids as we know today were considered acids because they contain hydrogen. Then they realized there are certain compounds like methane, ammonia, water, NaOH, इन सब में हाइड्रोजन है, but they are not considered as acids. So therefore, there was a requirement कि जो definition of an acid है, उसको थोड़ा सा polish करना पड़ेगा. So how did they go about polishing the definition of an acid or redefining acids? So the second definition that they came for an acid was an acid is a substance which when dissociated in water, it is important to note that which when dissociated in water releases an H plus ion as the only positively charged ion. तो एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर पानी में डालेंगे तो it will give a positive ion and a negative ion. Positive ion H plus ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन H प्लस ही होगा और कुछ नहीं होगा. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन बताते हैं, जैसे NaOH, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो इट विल गिव Na प्लस एंड OH माइनस. तो यहाँ पर तो H प्लस नहीं मिला, तो अकॉर्डिंग टू देम दिस वाज नॉट एन एसिड. इंस्टेड अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं HCl, उसको पानी में डालते हैं, इट विल गिव H plus and Cl minus. So since we get H plus as the positively charged ion, therefore HCl should be considered as an acid. ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को भी यहाँ तक कुछ पूछना है? तो हम दो सिचुएशन का बात कर लिया. एसिड इज अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, और सेकेंडली एसिड इज अ कंपाउंड which when dissolved in water contains H plus. Now third definition of an acid came when ये लोग इसको और मॉडिफाई करने का कोशिश किया HCl वाला चीज को. तो they said in the third definition कि when HCl is dissolved in water, ठीक यहाँ पर HCl will break into H plus and Cl minus. Agreed. But ये HCl जाके water के संग react करेगा to form H3O plus. समझ गया? So HCl को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पहले टूट के H plus बनाएगा,
वो H प्लस पानी में डिसॉल्व होके H3O+ बनाएगा, that is an acid. So further let us take some more examples of acids. अगर H2SO4 को पानी में डालेंगे तो it will give 2 times H plus and SO4 2 minus. ठीक है, तो ये जो H plus है ये पानी में जाके डिसॉल्व होगा. It will take 2 molecules of water and दोनों H plus उसमें डिसॉल्व होके they will form 2 H3O+. हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन. यहां तक किसी के भी मन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. Arnesh, any questions? No sir, no sir. Good. Karan, any questions? No sir. Keshav? No sir. Good. Fairly straightforward अभी तक तो हम लोग जो भी बात किया. तो एसिड का हम लोग अब 3 डेफिनेशन तक पहुंच चुका. पहला डेफिनेशन बोलता है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें H होता है. दूसरा डेफिनेशन बोलता है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में डालने से H+ आयन बनता है. Third definition says कि acid is a substance which when dissolved in water it gives H3O+ ion as the positively charged ion. ठीक है, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में आते हैं. It says all acids compulsorily have hydrogen as their constituent in the form of H+. Similarly, all bases either have oxide मतलब O valency 2- या फिर OH hydroxide valency -1 when dissolved in water. Also, they have mentioned that there is an exception to this rule for bases. That exception is ammonia solution, मतलब NH4OH. ये नोट करके रखना. NH4OH is the only non-metallic compound which is an base. बाकी सारा metallic compounds ही base होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. And what are salts? Salts are substances formed when acids react with bases. तो बेस का जो OH- आयन होता है वो जब कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए तब जो सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड एन एसिड. सॉरी, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है NaOH, दैट इज अ बेस. हम उसके संग रिएक्ट कराया HCl, दैट इज एन एसिड. तो जब ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बेस का मेटेलिक पार्ट एसिड का नॉन मेटेलिक पार्ट के संग रिएक्ट करेगा टू फॉर्म NaCl, and this H will react with this OH to form H2O. Therefore we can summarize acid plus base, acid plus base will give salt and water. Let us take some more examples to understand this. Can anybody tell me what will be the salt formed here? Salt का नाम बताओ. सुनिधि? Sodium acetate. Very good. Sodium acetate is correct. So the answer is CH. COO मतलब ये वाला पार्ट जो रिएक्ट करेगा Na के संग and water. So next couple of minutes, let us take a lot of questions of this type and try and understand कि कौन सा एसिड किस बेस के संग रिएक्ट करता है and what are the salts. Anish, I'll start with you. बताओ क्या बनेगा. Anish? So Na2SO4 plus H2O.
एब्सोल्युटली करेक्ट. Na2SO4 प्लस H2. किसी को भी कोई जगह समझ में नहीं आ रहा है या दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आस्क. करेक्ट. लेट्स बैलेंस दिस. सामने यहाँ पे 2 बैठा देंगे. हो गया क्या बैलेंस? यहाँ पे 2 बैठेगा. ठीक है, गुड, करेक्ट आंसर. एक और करते हैं. करण, करण देर. हाँ सर. बताओ क्या बनेगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. कौन सा सॉल्ट बनेगा? सर CaCl प्लस 2. CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2. करेक्ट. और अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 2 बैठा दो, यहाँ पे 2 बैठा दो. गुड आंसर. कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर. नेक्स्ट करते हैं. केशव भाई. हाँ सर. बताओ. केशव. हाँ सर, सोच रहे हैं. इजी है बेटा, ज्यादा सोचने का है ही नहीं. इधर से मेटल उठा, इधर से नॉन मेटल उठा, खत्म कहानी. सर AlPO4 वेरी गुड. प्लस 3H2. परफेक्ट. क्या टफ था बता. गुड. नेक्स्ट. क्षितिज. क्षितिज, आई कांट हियर यू. Yes sir. क्षितिज बताओ, इनमें से एसिड कौन है, बेस कौन है? So the first one is the acid. Very good. Of course, the second one therefore is the base. And compound form क्या होगा बताओ? Potassium acetate plus water. Very good. Potassium acetate. CH3COO K. ये हो गया potassium acetate plus water. Good answer. Next. Nandini, हाँ सर. आप बताओ. Acetic acid and calcium hydroxide. So calcium acetate plus water. फॉर्मूला बताओ कि कैल्शियम एसीटेट का. और CA. बोलो बोलो बोलो, I'm listening. कोई हेल्प करेगा? COOH plus Ca. Good. ये हो गया कैल्शियम एसीटेट. क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, वो वैलेंसी 2 इधर आ जाता है. नंदिनी, क्लियर हुआ? हाँ सर. Good. तो कैल्शियम एसीटेट प्लस वाटर. ओके, रेयांशी आप बताओगी नेक्स्ट. Yes sir. पहले तो मुझे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करके दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जिंक हाइड्रोक्साइड एंड HNO3.
बोलो। So first वाला base है, second वाला acid है, Okay. Question. and zinc क्या nitrate and water. एकदम करेक्ट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला हेल्प कर दीजिए थोड़ा। ZnNO3 whole twice. गुड। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ग्रेट। सौम्या, Yes, sir. ये वाला नाम बताओ। बैलेंस करके बताना है। एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है इसमें? तो AgCl, तो HCl एसिड और AgOH बेस है। करेक्ट। सॉल्ट क्या बनेगा? तो AgCl2 plus H2 है। तो AgCl2 plus H2 है। आप लास्ट ईयर भी मेरे पास यही गलती किया था। सिल्वर क्लोराइड इज AgCl बेटा। सिल्वर का वैलेंसी इज 1, क्लोराइड का भी वैलेंसी इज 1। नोट कर लो, याद रखो। ठीक है? Yes, sir. सुनिधि, Yes, sir. टफ वाला दे। Okay, sir. थैंक यू। ये बताइए, ये बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ना सोचो मत। Sir, both are base. वेरी गुड। सो देयरफॉर नो रिएक्शन। हम तो बोला ही कम टफ वाला पूछेगा। ओके, तो अब इसको अगर हम चेंज करें, CH3 COOH, बोलो क्या बनेगा? So zinc acetate and water. एंड कैन यू हेल्प मी विद द फॉर्मूला? So CH3 or COO whole twice and H2O. जिंक नहीं लिखोगी? Oh, एकदम क्लियर हो गया अब ये बात? सर बेस में हमेशा OH होना जरूरी होता है। नहीं, ये वाला बेस है ना, अभी बात की हम लोग। तो बेस हाँ। में या तो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा, लेकिन जो भी होगा मेटल का होगा। ओके। हम थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। बेस, 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 एसिड, 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 एसिड। इन Okay, sir. चारों में कॉमन ये है कि चारों में नॉन मेटल से बनाया गया है। इन चारों में कॉमन ये है कि चारों मेटल से बनाया गया है। Oxides of metals are bases in nature या basic in nature. Oxides of non-metal are acidic in nature. अब हम आपको कुछ ऐसा ऑक्साइड्स बताते हैं जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल है, वाटर H2O न्यूट्रल है। ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये ध्यान रखें। तो जरूरी नहीं है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होना ही चाहिए, दे कैन आल्सो बी न्यूट्रल समटाइम्स। ओके, सो हम कुछ कंपाउंड्स बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताएगा वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी। Base. Base. बेस। कीप योर माइक्रोफोन्स ऑन फॉर सम टाइम, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बताओ। Base. Acid, sorry. एसिड, Acid. Acid. हाँ एसिड। ये Acid. Acid. एसिड, वेरी तो गुड। बेस। एसिड बेटा, हम P2O5 का बात कर रहे हैं, इट्स एन एसिड। P2O5 बेस नहीं है। नहीं, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। नहीं सर, P2O5 is not a base. अरे इट इज एन एसिड, हम बोल रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है आप 4 बार पूछोगे हम डर के हाँ बोल देंगे? अरे नहीं सर। ये ना पानी के संग डिसॉल्व होके
एक एसिड बनाता है which is H3PO4, ठीक है, it's a good acid. कैल्शियम ऑक्साइड, बेस, बेस, वेरी गुड. एक चीज बता देते हैं, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑल्दो दे आर मेटेलिक ऑक्साइड्स बट दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक मतलब both acidic as well as basic, एम्फोटेरिक. और हम 3 एग्जांपल दिया था, CO, NO, H2O. ये 3 था न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये हो गया बोथ, ये हो गया नन. कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम लोग अब सीख गया मोरलेस कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स: एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड. लेट अस सी कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है. एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ विनेगर, किचन में यूज होता है, चाइनीज खाना बनाने में. अच्छा एक चीज बताओ, अगर चाइनीज खाना बैन हो जाएगा तब क्या एसिटिक एसिड को भी बैन कर देना चाहिए? तो ये बेचारा का और कोई काम ही नहीं बचेगा फिर. साइट्रिक एसिड, इट इज यूज्ड इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस. नींबू पानी होता है ना, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, उसका खट्टापन इसी के चलते होता है. इंपॉर्टेंट है फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग के स्टमक में प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर में, टू डिकम्पोज द फूड दैट वी ईट. उसके अलावा फॉर्मिक एसिड इज इम्पॉर्टेंट. ये मिलता है इन द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंट्स. जब एंट या बीज काटते हैं तो वो जगह देखना लाल हो जाता है, वहां पर वो लोग एक एसिड छोड़ जाते हैं. दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड. लैक्टिक एसिड, इट इज फाउंड इन सार मिल्क, मतलब दही, दही में मिलता है लैक्टिक एसिड. इवन जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है. देन इंपॉर्टेंट वन इज स्ट्रेट अवे स्टीयरिक एसिड. हम लोग के बॉडी में जो फैट होता है उसके अंदर में मिलता है. टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन सब्सटेंसेस लाइक ग्रेप्स, इमली, टैमरिंड जो होता है, एंड ग्रीन एप्पल्स, मतलब एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ एप्पल्स होता है, उसमें मिलता है टार्टरिक एसिड. So acid is a substance which forms H3O plus when dissolved in water. Hydrogen should be commonly present in all acids. क्या एक भी एसिड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है? नो, ऐसा एक भी एसिड नहीं हो सकता जिसमें हाइड्रोजन नहीं है. नॉट पॉसिबल. क्या एक भी ऐसा बेस है जिसमें OH नहीं है या ऑक्सीजन ही नहीं है? No, sir. Yes, there is. Ammonia is a base. Ammonia is a base NH3 जिसमें ना ऑक्सीजन है ना OH है. ठीक है. एक आंसर हम आपको ऐसा बता सकता है जो एक एसिड है लेकिन उसके अंदर में H नहीं है, ऑल्दो वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है ये आंसर. फिर भी इन केस यू नीड इट इन एनी MCQ टाइप एग्जाम्स तो ये लिख सकता है. द आंसर इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड. इट इज द ओनली एसिड इन योर रीच जो आप लोग जानता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है बट स्टिल इट इज एन एसिड. AlCl3, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है. अब क्यों मत पूछना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड. So AlCl3 is amphoteric, ना? नहीं बेटा, Al2O3 इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है. एम्फोटेरिक जो हम Okay, कैटेगरी sir. बताया था ना, वो खाली ऑक्साइड्स के लिए ही एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल ही नहीं है. ठीक है. इसके बाद देखो 4 रिएक्शन दिया हुआ है कि एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा. HCl dissolves in water to form H3O plus and Cl minus. H2SO4 dissolves in water to form H3O plus and SO4 2 minus. HNO3 dissolves in water to form H3O plus and NO3 minus. Similarly, acetic acid dissolves in water to form H3O plus and CH3COO minus. तो जैसा हम लोग बोला था, एक एसिड इज अ सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने से H3O plus आयन डेफिनेटली देगा एज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन.
So let us take different categories of an acid. Organic acid क्या होता है? These are acids which are found in plants and animals, and they are called organic acids. Example would be oxalic acid, acetic acid. ठीक है, ऐसा बहुत सारा है. ये यहाँ पे most of them are organic, ये वाला लास्ट के तरफ. Inorganic acids का example which are found in nature due to the presence of minerals. For example, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4. In fact, most of the acids that you have heard of ever are inorganic in nature. तो क्लास 9 तक जितना भी एसिड का आप लोग नाम सुना था सभी इनऑर्गेनिक था. तो H3PO4, H3PO3, H3PO2, H2SO4, H2SO3, H2CO3, HCl, HNO3, these are all carbonic acids. Sorry, these are all inorganic acids. Carbonic acid is also an example of inorganic acid. Carbonic acid in particular कहाँ पे use होता है? It is used in soft drinks. Soft drinks में जो fizz निकलता है, that is because of carbon dioxide, which makes carbonic acid. Okay, then there are hydra acids. Hydra acids वो acids होते हैं जिनके अंदर में हाइड्रोजन का होना तो कंपलसरी है ही, बट ऑक्सीजन का नहीं होना भी कंपलसरी है. तो hydra acids have hydrogen, no oxygen. They are called hydra acids. Similarly, there is something known as an oxyacid. An oxyacid is an acid which must contain oxygen. एक acid जिसमें compulsorily oxygen present है is called an oxyacid. और जिसमें oxygen नहीं present है but hydrogen definitely present है, that is called hydra acids. Oxyacid का example हो गया HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3. और हाइड्रा एसिड्स का एग्जांपल हो गया HCl, HBr, HF, HI, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है. Any doubts from anyone? Arnesh, कोई डाउट बेटा? No, sir, no doubts. Akshi, sleeping? Keshav? Hello, Keshav. Kshitij? No, sir. Priyanshi? So clear. अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड. कभी कभी एसिड में क्या होता है, हम लोग एसिड का क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं, बेस का एसिड का क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं, वाटर का क्वांटिटी कम ले लेते हैं. सच एन एसिड इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. और कभी कभी क्या होता है, एक एसिड के अंदर में हम लोग एसिड का क्वांटिटी कम ले लेते हैं, वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लेते हैं, दैट इज अ डाइल्यूट एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? एसिड ज्यादा वाटर कम. डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? पानी ज्यादा एसिड कम, दैट इज अ डाइल्यूट एसिड. अब एक छोटा सा चीज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, प्लीज लेट मी नो इन केस यू डोंट फॉलो दिस. क्या सब कोई का डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्लियर हो गया? हाँ सर. हाँ सर. नंदिनी बताओ, डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? सर डाइल्यूट एसिड में वाटर बेसी होता है, एसिड कम होता है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज्यादा होता है, वाटर कम होता है. Very good. Can anybody tell me what is a strong acid, what is a weak acid? So strong acid is a strong acid जो ज़्यादा easily hydronium ions release करता है. Very good, एकदम करेक्ट. तुम क्वेश्चन मार्क क्यों था तुम्हारे क्वेश्चन के लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में? I was not sure. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको पानी में डालने से वो कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट के H3O+ बना देता है. वीक एसिड वो होता है जिसको वाटर में डालने से वो कंप्लीटली नहीं बल्कि बहुत कम आयनाइज करता है, बहुत कम H3O+ आयंस बनाता है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग, ये बात को ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लेते हैं इन वाटर, तो यू विल सी कि अराउंड 95 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल एक्चुअली ब्रेक डाउन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, तो यू विल रियलाइज उसका सिर्फ 5, 7, 10 मे बी 15 मॉलिक्यूल्स आयनाइज किया टू फॉर्म H3O+, मतलब इट इज अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू H3O+, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है? Where a very small quantity of the acid molecules break down into H3O+. That is the difference between strong acid and weak acid. कोई डाउट? ओके, नाउ हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को एक बार दोबारा समझते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड ज्यादा पानी कम। ये बात क्लियर है ना? तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? सुनिधि एक बार दोबारा रिपीट करो, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ? So it contains more water rather than the acid. Very good. More quantity of water, very small quantity of an acid. Now, आप सोचो कि अब आप सोचो कि अगर एक एसिड के अंदर में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है और बहुत कम एसिड का मॉलिक्यूल्स है, तो अगर 500 मॉलिक्यूल्स या 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर में आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाल देता है, तो क्या होगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट तो होगा, वो तो उसका नाम है, वो तो उसका कैटेगरी है। लेकिन आप मेरा बात को समझो, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा खाली 10 एसिड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का। डू यू अंडरस्टैंड? तब डोंट यू थिंक ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन? If you give more water molecules compared to the number of acid molecules, then don't you think all the acid molecules will be broken down due to the large number of water molecules? In that case, dilute acid is a strong acid and concentrated acid is actually a weak acid. क्या ये बात मेरा समझ में आया? हम ये लाइन का बात करते हैं। सुनिधि, ये वाला लाइन क्लियर हुआ? अर्नेश, ये वाला लाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Good. सौम्या? Yes, sir. हम एक बार रिपीट करते हैं। If I have 1 million molecules of water and in those 1 million molecules I drop 10 molecules of HCl, then definitely you will call it a dilute solution, that I agree. But साथ में all the 10 molecules will get broken down due to the large quantity of water. Hence, it is a strong acid. Strong acid का definition क्या था? हम जितना मॉलिक्यूल देंगे सबका सब टूट जाएगा, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेता, तो हम मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 95 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाल देता, डू यू थिंक 100 मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू ब्रेक ऑल 97? ऑफ कोर्स नो, बहुत कम ही तोड़ पाएगा। दैट एक्चुअली इज अ वीक एसिड। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्चुअली ऑपोजिट टू डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। किसी के भी मन में यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। केशव, क्लियर है बेटा? हाँ सर। प्रियांशी? यस सर। अब एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे, नोन एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन। तो अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक एसिड प्रोवाइड करें और उसमें से 27 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन किया इन द एसिड, इन द वाटर,
then we'll say it is having a degree of ionization 27 and therefore it is a weak acid. क्या बात समझ में आ गया? So out of all the molecules, the percentage that dissociate is called the degree of ionization. If the degree of ionization is less than 30, we say it is weak acid. More than 30 is a strong acid. अब एसिड को डिफाइन करना होगा in the terms of their basicity. तो HCl का बात अगर करें तो it will break to form 1H+, उसका basicity is 1. अगर हम लोग H2SO4 का बात करें it will break to form 2H+, उसका basicity is 2. अगर हम लोग H3PO4 का बात करें it will break in water to form 3H+, उसका basicity is 3. इसको ट्राई बेसिक फॉस्फोरिक एसिड. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? Okay. Can anybody give me the formula of an acid which has basicity equal to 4? Kamya? So H4SI4 SiO4. Very good. H4SiO4. स्क्रीन का फर्स्ट लाइन एकदम सिलिसिक लिखा हुआ है बोर्ड पे. वही तो बोल रहे हैं, स्क्रीन का फर्स्ट लाइन सिलिसिक एसिड H4SiO4. इट इज द ओनली एसिड आप लोग के सिलेबस में हैविंग द बेसिसिटी ऑफ 4. ठीक है, पूछने का चांस कम है लेकिन पूछ भी सकते हैं. प्रिपरेशन ऑफ एसिड. अब एसिड प्रिपेयर कैसे करें? हाइड्रोजन के संग किसी नॉन मेटल को रिएक्ट कर दो, जो बनेगा दैट इज एन एसिड. दूसरा तरीका, ऑक्साइड्स के संग वाटर को रिएक्ट करवा दो. अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना आप लोग को, SO2 को वाटर में डालेंगे एसिड बन जाएगा, CO2 को वाटर में डालेंगे एसिड बन जाएगा. somebody asked P2O5 के बारे में, यशवी पूछा था आई थिंक. तो देखो P2O5 पानी में गया, H3PO4 बना दिया, दैट इज एन एसिड. N2O5 पानी में गया, नाइट्रिक एसिड बना दिया, दैट इज आल्सो एन एसिड. सो दीस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. तो मेरे पास अगर एक सल्फर मॉलिक्यूल है, उसके संग हम HNO3 को रिएक्ट कराएंगे, तो सल्फर प्लस HNO3 विल गिव H2SO4 वाटर एंड N2. तो बेसिकली हम क्या किया, एक नॉन मेटल के संग एक एसिड को रिएक्ट कराया, एक नया एसिड बन गया, और नॉन मेटल का या एक जो एसिड था उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन गया. तो NO3 ब्रोक डाउन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर फॉर्म्ड अनदर एसिड कॉल्ड H2SO4. फॉस्फोरस जब HNO3 के संग रिएक्ट करेगा तो नया एसिड बनेगा. नया एसिड कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड, और ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. जब एक सॉल्ट एक एसिड के संग रिएक्ट करेगा तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इट विल फॉर्म अनदर सॉल्ट, अनदर एसिड. यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो सॉल्ट बना उसके अंदर में एक हाइड्रोजन एटम बच गया H. सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एसिड सॉल्ट्स. So any salt in which you will find the presence of hydrogen is called acid salt. Questions? Okay. Now properties of acids. Acids का कुछ property. Taste. खट्टा होता है टेस्ट में, of course हम लोग पहले भी देखा था, चाहे वो दही का बात करें, कर्ड, चाहे हम लोग साइट्रिक एसिड का बात करें, विनेगर का बात करें, तो दे आर सावर इन टेस्ट. कुछ कुछ एसिड जो मिनरल एसिड होता है H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. तो उसको तो टेस्ट करना भी मत. सावर है तो सावर रहने दो, स्वीट है तो स्वीट रहने दो. डोंट ट्राई टू टेस्ट. ठीक है. हैज एनीबॉडी यूज्ड H2SO4 या HNO3 इन द लैबोरेटरी? No one? Yes, Okay. sir, in school. Yeah. Okay. Good. So examples of some acids. इन सबका नाम याद रखना होगा. Most of them you already know. Let me see कौन सा आप लोग को नहीं पता होगा. ऑक्सैलिक एसिड एक बार देख लेना, important है. COOH2 और बोरिक एसिड H3BO3, ये बहुत important है. इन सब एसिड का बात अगर करें, फर्स्ट 5 एसिड दे आर ऑल सॉलिड्स. इट इज वेरी रेयर टू फॉर्म सॉलिड एसिड्स, सो दीस 5 आर सच एग्जांपल्स.
नेक्स्ट एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब तो हम लोग अभी थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। इफेक्ट ऑन स्किन, कोई भी एसिड जनरली HNO3 and H2SO4 they leave black stains on the skin. On the other hand, HNO3 if reacts with skin it leaves a yellow stain. Similarly, अगर HCl skin के संग react कर गया तो it creates an amber color. ठीक है, ये तीनों का कलर को हाईलाइट कर लो ना। Okay, can anybody tell me what is amber color? एम्बर कलर कैसा दिखता है? येलो और ऑरेंज के बीच का एक शेड होता है, समवॉट लाइक मैंगो। ओके, सो ये हो गया इफेक्ट ऑन स्किन। एसिड्स हैव एन इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। तो जब एसिड एक इंडिकेटर के संग इंडिकेटर के प्रेजेंस में होता है तो वो कलर चेंज से बता देता है कि विच काइंड ऑफ एसिड आर वी टॉकिंग अबाउट। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सिंपल सब्सटेंसेस व्हिच आर फाउंड आइदर इन आवर किचन और विद आवर डोमेस्टिक हेल्प। आप लोग अगर घर में खोजेगा तो ऑनियन, वैनिला, क्लोव ऑयल, कैबेज, ये सब इजीली घर में अवेलेबल होता है। दे कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हो, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में, आप लोग रियलाइज करोगे कि वहाँ पे विनेगर में वो लोग ऑनियन डिप करके देता है। जब ऑनियन को विनेगर में डिप करते हैं तो वो एक रेडिश कलर उसके ऊपर में क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ऑनियन टर्न्स पिंकिश रेड। So that is a indicator कि वो substance जिसमें dip किया गया था that is a acid. उसी तरह there are more formal ways of testing the nature of an acid. उनमें से एक है litmus paper, एक है methyl orange, एक है phenolphthalein. What is litmus paper? Litmus paper एक acid के presence में blue color से red में transform हो जाता है. Similarly, base के presence में red से blue transform हो जाता है. Methyl orange transforms from orange to pink and phenolphthalein transforms from colorless to colorless. उसका color मतलब change नहीं होता, it remains the same, colorless. यहाँ तक एक बार देखो। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। नंदिनी? नहीं सर। काम्या? नहीं सर। अर्नेश? No, sir. प्रियांशी? नो सर। सुनिधि? Sir. क्षितिज? No, sir. I missed out one name, कौन सा हम याद नहीं कर पा रहे। नहीं, मोस्टली सबसे पूछ लिया। गुड, चलो अच्छा है, क्लियर हो गया एक पार्ट। अब हम लोग रिएक्शंस ऑफ सम एसिड्स देखेंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म MgCl2 एंड हाइड्रोजन। जिंक रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। वेरी वेरी बेसिक रिएक्शंस, कुछ है नहीं इसमें बताने का। इसके अलावा copper oxides react with H2SO4 to form water and copper sulfate. ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कार्बोनेट अगर एसिड के संग रिएक्ट करे तो CO2 गैस तो पक्का निकलेगा और संग में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 reacts with HCl to form calcium chloride, water, SO2. Sodium bisulfite मतलब HSO3 reacts with HCl to form sodium chloride, water and SO2. ऐसे करके डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए।
एंड क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड जब एसिड के संग रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। सॉल्ट तो बनाएगा ही, जिंक क्लोराइड या FeSO4, बट संग में H2S गैस बनेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क करो दोनों रिएक्शन को। इनफैक्ट हम हमेशा बोलते हैं कोई भी रिएक्शन जहां पे H2S बनता हो या फिर सल्फर डिपॉजिट होता हो जिस रिएक्शन में, दोज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे संग में एक छोटा सा चीज लिख लो, ये जो H2S इवॉल्व हुआ ना, इट हैज गॉट अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द स्मेल ऑफ H2S? So rotten egg smell. rotten egg. वेरी गुड, सड़ा हुआ अंडा। इट हैज अ रॉटन एग स्मेल। ओके, क्लोराइड्स के संग कैसे रिएक्ट करता है? अगर सोडियम क्लोराइड के संग H2SO4 रिएक्ट कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स, एंड न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म। ये अगेन हम लोग H2SO4 का जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिटेल्स में ये वाला रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अभी एक बार चलिए देखते हैं। उसी तरह अगर लेड नाइट्रेट के संग रिएक्ट किया HCl तो इट विल फॉर्म लेड क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जैक्टली द सेम थिंग। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन is a mixture of rain along with acid या acid along with rain in other words। क्या होता है कि जब किसी दिन मान लो heavy lightning और thunderstorms हो रहे हैं, at that time एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो ड्यू टू लाइटनिंग रिएक्ट करके कन्वर्ट कर जाता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बनता है NO, वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके बना देगा NO2। वो NO2 वाटर के संग जब मिक्स करेगा, रेन का वाटर के संग, इट विल फॉर्म HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो अल्टीमेटली एसिड रेन के दौरान क्या होता है, जो बारिश गिर रहा है उसके संग में एसिड भी गिरता है एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन सबसे ज्यादा दिखाई देता है इन द मॉनसून टाइम, ठीक है, अपने इंडिया का बात कर रहे हैं। एंड देयरफॉर वो एसिड अलोंग विद द रेन जब किसी के बॉडी में गिरता है तो स्किन में इचिंग होता है, हेयर पे गिरने से हेयर स्कैल्प खराब होने लगता है एंड देयरफॉर हेयर फॉल होता है। इंडिया में एक फेमस सेइंग है कि सावन जो होता है ना, मतलब मॉनसून टाइम, उसका बारिश में भीगना नहीं चाहिए। द रीजन फॉर दैट दे से कि हेयर फॉल हो जाता है, बट वो हेयर फॉल के पीछे रीजन एक्चुअली बारिश नहीं, एसिड रेन है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एनीवेज, इसका और भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। वो एसिड रेन जब बारिश का पानी के संग जो एसिड जमीन पे आता है वो रिवर वाटर में भी जाएगा, सी वाटर में भी जाएगा एंड देयरफॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो हैम्पर करता है। दूसरा, वो जो एसिड रेन आता है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स अराउंड अस। जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, जैसे मान लो मार्बल का बनाया हुआ ताजमहल हुआ या और कोई मॉन्यूमेंट, उनको धीरे 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 उनका अपीयरेंस खराब कर रहा है, उनको कोरोड कर रहा है। बिल्डिंग में जो वाटर पाइप्स है, जो आयरन के सब्सटेंसेस है, उन सबको धीरे धीरे वो खराब कर देता है। सो एसिड रेन इज नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग, ठीक है। यूजेस ऑफ सर्टेन एसिड्स, ऐसा नहीं है कि एसिड खाली खराब करता है, नुकसान करता है। देयर आर सम यूजेस ऑफ एसिड्स एज वेल। बोरिक एसिड हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज। इट कैन बी यूज्ड फॉर आई वॉशिंग। आंख के अंदर में जो आई ड्रॉप होता है ना, उसमें यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, फॉर एग्जांपल बोरोलिन टाइप का। साइट्रिक एसिड में साइट्रिक एसिड का यूज होता है खाना था कि खराब नहीं हो उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। अचार वगैरह में देखना हम लोग नींबू डाल देते हैं इसीलिए, ताकि वो खराब नहीं हो, काफी टाइम तक वो लास्ट कर सके। ऑक्जेलिक एसिड हेल्प्स इन रिमूविंग इंक का स्टेन्स। इंक का जो धब्बा लग जाता है कपड़ा में, वो उतारने में काम आता है ऑक्जेलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ऑफ कोर्स थम्स अप बनाने में काम आता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। टार्टरिक एसिड इज यूज्ड इन बेसिक बेकिंग पाउडर एंड इसके अलावा लास्ट दो, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पहले पूछो।
ग्रेट। तो I'm assuming कि एसिड वाला पार्ट मोर और लेस अब सबका क्लियर हो गया। So I'll give you a break of 2 minutes. Collect your thoughts. Ask me any doubts if you need to. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे with the concept of base. Sir, ओके, क्या कंडीशन है? सब देखा? किसी को कुछ पूछना है एसिड्स वाले पोर्शन में? I've sent it out. हाँ हाँ, टेल मी। सर मेरे को पूछना है। सेंड मी मतलब मोबाइल पे क्या? हाँ सर। ओह, आई डिडंट रियलाइज। कब भेजा बेटा? नहीं, मुझे नहीं मिला। ओके, अभी आया। दैट लाइन कौन सा पेज है बेटा, बता। इसी बुक में है कि कोई दूसरा बुक है? सर दलाल। ओके, सो लेट मी रीड द लाइन। व्हाट इज द हेडिंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Sir, heading was weak acid. हेडिंग वाज Weak acids. ओके। सो एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है। नाउ इट सेज एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। एनहाइड्रस मतलब विदाउट एसिड, ड्राई एकदम। ड्राई एसिटिक एसिड ऑन कूलिंग फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है विनेगर। विनेगर को एकदम ड्राई फॉर्म में अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो व्हाट वी एक्चुअली एंड अप गेटिंग is a new substance known as glacial acetic acid. Glacial acetic acid looks somewhat like, let's say, a block of ice या a block of alum. क्या आप लोग जानते हैं alum कैसा होता है? कोई alum देखा हुआ है? Come on. कोई फिटकरी देखा हुआ है? हाँ सर। हाँ, तो जो फिटकरी होता है वो उसका एक साइंटिफिक नेम इज एलम। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड लुक्स समवॉट लाइक दैट, मतलब बर्फ के जैसा उसका अपीयरेंस हो जाता है। दैट इज व्हाई द नेम ग्लेशियर,
ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इट कम्स फ्रॉम आइसी लुक। तो उसका जो अपीयरेंस है वो ड्राई करने पे एक सॉलिड बर्फ के जैसे, एक रॉकी सब्सटेंस के जैसे हो जाता है। बात समझ में आया? हाँ सर। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सो हाँ जी बोलिए। तो olfactory indicators क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अभी बताए थे ना बेटा, अभी दिखाएंगे आपको, वापस याद आ जाएगा। आप यही बोल रही हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली होता है, हम लोग के घरों में, किचन में जो इंडिकेटर्स मिलते हैं ना, मान लो आपको एक सब्सटेंस, एक ग्लास में एक सब्सटेंस दिया गया और आपको नहीं पता वो एसिड है कि बेस है, ठीक है? तो उसको अगर हमको जल्दी से चेक करना है वो एसिड है कि बेस है, तो हम लोग उसमें एक नींबू डुबा देंगे या फिर एक ऑनियन डुबा देंगे, और थोड़ा देर बाद अगर वो ऑनियन जनरली व्हाइटिश कलर का होता है, अगर वो रेडिश कलर का कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि जो सब्सटेंस था दैट इज एसिडिक इन नेचर, जो सोल्यूशन हमको दिया गया था वो एसिडिक था। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, आप बिना कोई केमिकल रिएक्शन, बिना लेबोरेटरी में गए, बिना किसी एपरेटस वगैरह के हेल्प के आप जल्दी से चेक कर लिया कि मेरा सब्सटेंस एसिड था कि बेस था। How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? No, sir. Like I'm a cop. Yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze. Okay. So हम लोग सीख गया व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर बाय द हेल्प ऑफ विच हम लोग एसर्टेन कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन रेगुलर सब्सटेंसेस अवेलेबल विद अस इन अ किचन और डोमेस्टिक हाउसहोल्ड। बात समझ में आया? दैट्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो बी अवेयर ऑफ द स्पेलिंग। हाँ, सो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे हम आप लोग को बता रहे थे, ऑनियन इज तो ऑफ कोर्स वेरी फेमस। उसके अलावा यू कैन टेक कैबेज लीफ, यू कैन टेक टैमरिंड। टैमरिंड मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इमली बोलते हैं ना टैमरिंड को। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। यू कैन ऑल्सो टेक, वो क्या होता है जो खिचड़ी में डालते हैं, येलो येलो, हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक भी डाल सकते हैं इसमें। तो इन सब की हेल्प से हम लोग को जल्दी से पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। यू कैन ऑल्सो यूज चंदन। तो दीज आर एग्जांपल्स, ऐसा बहुत सारा होता है। ओके, सो इंडिकेटर्स, कलर चेंज इन एसिडिक मीडियम कैसे पता चलेगा, जैसे हम बताए थे, समझ ही गया होगा अब तो ये पार्ट, आई डोंट थिंक इसका जरूरत है। ओके, कोई और क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग बेस के संग शुरू करेंगे। सो हम बेस आप लोग को ऑलरेडी इन डिटेल्स काफी हद तक बता चुका है, अब हम लोग उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बेस होता क्या है। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस का एग्जांपल वुड बी कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो अगर हम कॉपर ऑक्साइड का बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि these are either oxides or hydroxides of metals. That is what we consider as a base. Now another thing that I told you beforehand was bases में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स तो होता ही है, बट एक और चीज होता है, दैट इज एक पर्टिकुलर कंपाउंड है विच इज अ वेरी वेरी गुड बेस, एंड दैट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। और ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल नहीं है, स्टिल इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर लिखा है मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स का मतलब भी होता है बेसिक ऑक्साइड्स।
Similarly, basic hydroxides, matlab metallic hydroxides. Examples here. So what is an alkali? An alkali is a base which is soluble in water. Now, if there are, let's say, 20 bases, all the 20 bases may or may not be soluble in water. So, जो base water में dissolve हो जाए, water में soluble हो जाए, those are called alkalis. Alkalis are water soluble bases. Okay? Examples of alkalis would be sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide. ये ध्यान रखना बहुत काम है. These two, potassium and sodium hydroxide, are strong alkalis, and last ka two, calcium and ammonium hydroxides, are kind of weak alkalis. Now, strong base और weak base क्या होता है? वो base जिसको पानी में dissolve करने से वो completely ionize कर जाए is a strong base. वो base जिसको पानी में डालने से only a few molecules break down, जैसे हम लोग पिछला बार बताए थे, degree of ionization जिसका कम होता है, are called weak bases. Strong base पानी में डालेंगे completely ionize कर जाएगा. Weak base पानी में डालेंगे बहुत कम molecules ionize करेगा. Strong base का example sodium and potassium hydroxide. Weak base का example ammonium hydroxide, calcium hydroxide. Now, acids के लिए हम आप लोग को बताए थे एक term होता है उनका basicity. For example, what is the basicity of H2SO4? Anish? Sunidhi? Please repeat. My question was, what is the basicity of H2SO4? Two. Basicity of H2SO4 was 2. Very good. तो जैसे एसिड का बेसिसिटी होता है उसी तरह से बेस का एसिडिटी होता है. तो अगर हम लोग NaOH का बात करें तो वो पानी में जाने से एक OH माइनस देगा तो उसका बेस एसिडिटी इज 1. उसी तरह NH4OH एसिडिटी इज 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देगा, देयरफॉर एसिडिटी 2. कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देगा, देयरफॉर एसिडिटी 2. ट्राइबेसिक एसिड जो 3 OH माइनस देगा, ऑफ कोर्स AlOH whole 3, FeOH whole 3. ठीक है. नाउ हाउ वुड बी प्रिपेयर अ बेस? स्ट्रेट अवे मेटल को ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर दो, ऑक्साइड बन जाएगा विच इज अ बेस. मेटल को वाटर में डिसॉल्व कर दो, रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा. दीज आर बेसिस. अब जो मेरा बेसिस बना उनको पानी में डिसॉल्व कर दो, यू विल गेट हाइड्रोक्साइड्स. अगर सॉल्युबल हुआ तो यू विल गेट सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, मतलब एल्कलीज. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर एक सॉल्ट के संग एक बेस रिएक्ट करेगा तो एक नया सॉल्ट और एक नया बेस बनेगा. तो लेट अस सी, FeCl3 and NaOH will give FeOH whole 3 and NaCl. इसी तरह AlCl3 and NH4OH will give AlOH whole 3 and NH4Cl. जब जिंक सल्फाइड के संग ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो इट विल गिव जिंक ऑक्साइड एंड SO2. तो सल्फाइड reacts with oxygen to form an oxide and sulfur dioxide. Decomposition of certain salts, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आसपास एयर नहीं होना चाहिए, हम खाली उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो आई विल गेट टू कंपाउंड्स. वन ऑफ देम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द अदर वन इज CO2. Without No, sir. अब बात करते हैं मेटल नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो देगा कैल्शियम ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन. उसी तरह जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो देगा जिंक ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन.
ठीक है। नेक्स्ट एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बड़ा इजी है। एमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर दो, यू विल गेट एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सब्सटेंस बनेगा एमोनिया प्लस वाटर मिक्स करने से, दैट इज NH4OH and it is a weak alkali. ठीक है। Now properties of bases and alkalis. लिटमस जैसे हम बताया पिछले बार का उल्टा होगा। लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू को रेड करता है एसिड के केस में, तो बेस के केस में क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। फिनेफ्थलीन कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। ठीक है। दे आर सोपी सब्सटेंसेस, दैट इज दे आर स्लिपरी टू टच। जितने भी सोप होते हैं ना, द ओल्डर वंस बेसिकली, जो पहले का जमाना में बेसिस साबुन बनता था, वो सब सोपी सब्सटेंसेस होता था, स्लिपरी इन टच। ठीक है। दे ऑल हैव दिस एग्जांपल। आजकल के दिन में जो सोप्स बनते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली मेंट विद बेसिस, दे आर इन फैक्ट ऑफ मच हाई क्वालिटी। वो तो आजकल क्रीम व्रीम पता नहीं क्या क्या चीज से बनाने लगता है। इन फैक्ट हैव यू हर्ड ऑफ सोप्स कंटेनिंग एक्टिव चारकोल? एक्टिव चारकोल बोल के एक सब्सटेंस होता है, वो भी आजकल ये लोग बोलते हैं यूज कर लेते हैं इन सोप्स एंड फेशियल क्रीम्स। पता नहीं क्या चल रहा है। एनीवे, सो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, these NaOH and stuff, and they show a mild corrosive action on the skin. Of course they need to have a mild corrosive action, नहीं तो skin clear नहीं होगा। So the action is not very vigorous, एक हल्का सा corrosive action on skin होता है। इनफैक्ट देखना विंटर टाइम में जब हम लोग सोप से नहाते हैं, नॉर्मल सोप, नॉर्मल मतलब क्रीम वाला जो सोप नहीं होता है, यू विल रियलाइज कि उसके बाद अगर आप फिंगर पे नेल्स को मूव करो तो यू विल सी कि स्कार्स आना शुरू हो रहा है। सो दैट मींस स्किन बिकम्स वेरी ड्राई। सो दे हैव अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन। Chemical properties: NaOH and CO2 will give Na2CO3 and H2O. Similarly, KOH and CO2 will give K2CO3 and H2O. Similarly, अगर कॉपर सल्फेट में NH4OH को ऐड करेंगे तो यू विल गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड NH4 तो अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना वो पेल ब्लू कलर का होता है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू कलर। उसी तरह जब जिंक सल्फेट को NaOH में रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को बनेगा Na2SO4 एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। वो जिंक हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस व्हाइट कलर का होता है, जेलेटिनस व्हाइट। The meaning of the word gelatinous white is कि somewhat like Colgate का जो टूथपेस्ट होता है वैसा दिखता है। उसी तरह अगर FeSO4 में NaOH डालेंगे तो you will get Na2SO4 and FeOH whole 2। ये जो FeOH whole 2 बना, it is a dirty green precipitate somewhat like algae का जो लुक होता है ना, greenish, वैसा कलर का। Now, a very, very important reaction, extremely important reaction. Zinc hydroxide reacts with NaOH to form sodium zincate and water. Can anybody tell me what is so peculiar about this reaction? निधि बताएगा? सौम्या? So they are amphoteric in nature. तो वो दोनों बेसिस है। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो रिएक्टिंग स्पीशीज है, दोनों बेसिस है। तो अ बेस इज रिएक्टिंग विद अनदर बेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये इस रिएक्शन का एडवांटेज या पिक्यूलियरिटी है।
So zinc hydroxide is reacting with sodium hydroxide to form sodium zincate. This is a very, very, very important reaction. So ammonium chloride reacts with NaOH to form NaCl, water and ammonia. Again, कोई भी कंपाउंड जिसमें अमोनिया होता है, मतलब अमोनियम होता है, उसको हीट करने पे डेफिनेटली अमोनिया गैस बाहर निकलता है. Uses of some bases, important ones हम बता दे रहे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम आता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बैटरी में यूज होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है. ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग को पता ही होगा, अभी चारों तरफ रास्ता में छिड़का जा रहा है. डिसइंफेक्टेंट है, उससे इन्फेक्शंस नहीं होता है. नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. जो आप लोग जेलुसिल या कोई भी एसिडिटी जब होने से खाता है जो दवाई, दैट इज एन एंटासिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कोइंसिडेंटली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, magnesium hydroxide. Or then there is magnesia. It is used in making refractory bricks. वो bricks जो कि चूल्हा में बनाया जाता है गरम करके, वैसा वाला bricks. And calcium oxide, it is used as a drying agent. किसी compound में से water extract करने का काम करता है. Strength of acid and base in a solution. एक acid स्ट्रॉन्ग, एक सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कैसे पता चलता है? लेट मी टेक यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर ऑफ अ स्केल नोन एज पीएच. इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल. डज एनीबॉडी नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन. वेरी गुड. सो इट इज बेसिकली द पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके हेल्प से हम लोग को पता चलता है एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है. तो अगर पीएच स्केल में किसी सब्सटेंस का वैल्यू आ जाए 7, ये रहा, हम लोग बोलेंगे वो न्यूट्रल है. किसी का वैल्यू आ जाए 7 से कम तो वो एसिडिक है. 7 के आसपास मतलब 5, 6 मे बी इवन 4 तो हम लोग बोलेंगे वीक एसिड है. अगर 1, 2 के रेंज में आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. तो जितना दूर 7 से उतना स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली अगर उसका पीएच आ गया 8, 9 के आसपास में तो बेस है और वीक बेस है. अगर 11, 12, 13 के रेंज में आ गया तो इट इज अ बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. Clear? What is the importance of pH in our day-to-day life? Number 1, हम लोग का जो बॉडी का pH है वो एक रेंज के अंदर में होता है 7 से लेके 7.8. इस रेंज के बाहर pH जाने से हम लोग का बॉडी अनईजी फील करने लगता है. So the body का pH has to be maintained within this range. Second, during agriculture ये बहुत काम आता है. जो सॉइल का pH होता है वो अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो द प्रॉब्लम विल बी दैट जो सॉइल है वो फर्टिलिटी अपना लूज कर जाएगा. इन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आप लोग बताया कि अगर एसिडिटी ज्यादा हो गया स्टमक के अंदर में तो एंटासिड खा के उसको बैलेंस करना पड़ता है. इन टूथ डीके, अगर मुंह के अंदर में या पेट के अंदर में एसिड ज्यादा बनने लगा तो वो सलाइवा के थ्रू मुंह में आ जाएगा एंड देयरफॉर टूथ पे भी इफेक्ट करने लगेगा एंड धीरे धीरे टूथ डीके होने लगता है. इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो नहीं हो, अगेन हम लोग को एसिड लेवल मेंटेन करके रखना होता है, बेस लेवल मेंटेन करके रखना होता है. द पर्पस ऑफ सेइंग दिस इज कि अगर बॉडी में एसिड लेवल बढ़ गया तो हम लोग एक एंटासिड मतलब एक बेस खा के उस एसिड लेवल को कम करेंगे. सेम वे में अगर किसी को कोई बी स्टिंग हो जाए, मतलब हनी बी आके अगर किसी को काट ले तो वहां पर उस जगह पर बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है. बी स्टिंग इफ यू रिमेंबर कंटेन्स एसिड, उसमें अगर हम लोग बेकिंग सोडा लगा देंगे दैट इज अ बेस, इट विल बिकम सॉल्ट एंड वाटर एंड देयरफॉर उस जगह में जो रिएक्शन होने का डर था, जो उस जगह पे डर था कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो फिर नहीं हो. Does anybody have any questions? Anybody? Okay. So for the next class आप लोग यहाँ तक अच्छा से पढ़ के रखना. We'll continue with the part on salts. ठीक है? चलो. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.